Welcome back to the Film Survivor, where we learn how to survive in a horror film. I will guide you all in the decision and strategies which might increase our chances of survival if we were a character in that film. आज हम देखने वाले हैं 20 साल बाद. 20 साल बाद is a psychological thriller film which came out in 1962. It was directed by legendary art director Birren Nag and stars Biswajit, Wahima Rahman, and Manmohan Krishna in the lead roles. The film is popular for its track Kahin Deep Jale Kahin Dil, sung by late great Lata Mangeshkar and penned by classic lyricist Shakil Badayuni. Before going any further, I would urge you all to like the video and subscribe to the channel if you like watching content like these. So without further ado, let's survive the plot. The film starts with a middle-aged man running away from an unseen force. He's caught and we hear his scream as the camera fades away. कुछ समय बाद हम देखते हैं कुमार विजय सिंह को, जो कि स्टेशन पर किसी का वेट कर रहा होता है. तभी डॉक्टर पांडे उसे रिसीव करने आते हैं. वी लर्न ऑन द वे कि वो फिल्म की बिगिनिंग वाले आदमी कोई और नहीं बट कुमार के चाचा ही थे, और उससे पहले उसके ग्रैंडफादर और फादर की डेथ भी ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस में दलदल के पास हुई थी, जिससे सब लोग गांव के ये मानने लगे कि कुमार की फैमिली कर्स्ड है. हवेली पहुंचकर कुमार को ग्रीट करने हवेली का इकलौता वर्कर लक्ष्मण होता है, और हर क्लासिक बॉलीवुड फिल्म की तरह वो भी क्रीपी केयर टेकर की तरह बातें करता है. Lakshman shows him around the palace and informs him that all the help except him left because of the paranoia caused due to the curse. He takes him to the Chacha's room and shows him a door which directly opens facing towards the forest. Kumar insists on staying at that room. Now this is some heavy exposition. स्टार्टिंग में कुमार के चाचा को रात में जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए था, स्पेशली जब वो भी कर्ज में मानते हैं और जानते हैं कि उनके भाई और फादर की डेथ भी वहीं पर हुई थी. तब भी उन्हीं की मौत पक्का थी, वरना ये फिल्म स्टार्ट कैसे होती. डॉक्टर पांडे ने कुमार को सिर्फ इस एलिजेड कर्स के बारे में नहीं बताया, बल्कि ये भी बताया कि उनकी प्रॉपर्टी को लेकर वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट और वायलेंस भी है. समथिंग टू थिंक अबाउट. अगर मैं कुमार की जगह होता तो मैं भी कर्स और सुपरनैचुरल अक्रेसिस को स्पेकुलेट करने से पहले लॉजिकली सिचुएशन को समझता. Either way, it's clear at this point that someone is trying to get rid of our entire family, which is not a great news. Next day, Kumar goes to hunt in the forest when he meets a beautiful girl named Radha. Radha is the niece of local Ved or medicine man Ramlal. Kumar is infatuated by her. यहाँ वो मोहन बाबू से भी मिलता है, one of the people Dr. Pandey warned him about earlier. He appears to be paraplegic. बातों बातों में मोहन की जेब से एक घुंघरू गिर जाता है, जिससे कुमार का शक और बढ़ जाता है. मोहन इस इंसिडेंट को ट्रिविलाइज कर देता है और कुमार को अपने घर रात में इनवाइट करता है. Kumar doesn't show up. Here we learn that Mohan is faking his handicap and he is not paraplegic at all. Kumar is reading a book on his bed at night when he hears a woman's crying. वो पीछा करता है उस आवाज़ का, और जब वो नीचे जाता है एक औरत की पेंटिंग के पास आकर वो आवाज़ बंद हो जाती है. फिर पेंटिंग से आवाज़ आती है, यहाँ कोई नहीं बच सकता. And the sound of घुंघरूस intensifies, scaring कुमार. कुमार कन्फ्रंट करता है क्रीपी केयरटेकर लक्ष्मण को, जो कि बताता है कि 20 साल पहले कुमार के ग्रैंडफादर इस हवेली के मालिक थे और गांव के औरतों को अगवा करके लाते थे. एक दिन वहां से एक लड़की, जो कि रामपुर के गांव के मुखिया की बेटी होती है, भाग जाती है. शी hides from the bodyguards in the forest but is caught near the dalda by the grandfather. After the unspeakable depravity shown by the grandfather, she slips and dies. Lakshman also tells Kumar that his grandfather had her father beaten up and thrown in the basement. वो उस हवेली में उस लड़की की पेंटिंग इसलिए रखते हैं ताकि आगे से कोई भी आदमी ऐसी हरकत कभी ना करे. As a lesson. मोहन बाबू इज डेफिनेटली एक्टिंग सस here. घुंघरू लेकर घूमना और इतने ग्रीडीली एक्ट करना वॉज फुलिश ऑन हिज पार्ट. पर अभी इट्स टू सून टू जज और सस्पेक्ट एनीवन. मैं अगर कुमार की जगह होता तो मैं उसके घर रात में ज़रूर जाता टू गेट एनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन और टू जज हिज बिहेवियर अराउंड अस. एक बैकअप वेपन भी मैं अपने साथ रखता, जैसे कुमार की पिस्तल. इट कैन बी डेंजरस इफ़ ही वॉन्ट्स टू किल अस, बट हमें पता है कि किलर सिर्फ दलदल के पास जाके मारता है लोगों को, तो मोहन वहाँ पे हमें नहीं मारता if he was a killer, and we would have been safe either way. Following a creepy girl's crying wasn't the smartest decision. As that smart guy from The Matrix once said, ignorance is bliss. ये स्टोरी सुनने के बाद अगर मैं कुमार की जगह होता तो सबसे पहले अपने दादा की फ़ोटो फाड़ कर जला देता, बिकॉज ही डिजर्व्स दैट, और फिर लंदन वापस चला जाता. इट्स नॉट वर्थ ऑल द ट्रबल. मोर ओवर ही कुड हैव easily sold off his हवेली and moved back to London. It's not like any of his family members are living here anyway.
कुमार एक जासूस को हायर करता है जिसका नाम गोपीचंद होता है। अगली रात कुमार पियानो बजा रहा होता है कि तभी रात के 9:30 बजे किसी औरत के गाने की आवाज़ आती है। कुमार ऑब्वियसली उस आवाज़ का पीछा करता है क्योंकि द मैट्रिक्स इस फिल्म के 27 साल बाद रिलीज हुई थी। पीछा करते हुए वो जंगल में आ जाता है जहाँ आवाज़ बंद हो जाती है और वो डॉक्टर पांडे को वहीं देखता है। पूछने पर डॉक्टर पांडे बताते हैं कि वो एक पेशेंट को देखकर वापस आ रहे थे। कुमार डजंट बिलीव हिम। छानबीन करते हुए कुमार को एक सुरंग मिलती है दलदल के पास। वो और गोपीचंद वहाँ इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं एज वी सी मोहनलाल स्पाइंग ऑन देम। उसी रात फिर से सेम इंसिडेंट होता है। औरत गाने लगती है, कुमार पीछा करता है, जंगल में आता है और औरत गायब हो जाती है। कुमार कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ वहीं खड़ा रहता है। कुमार should do what the rest of the people in the village are doing and that is minding his own business. जंगल में बार बार जाना, आवाज का पीछा करना इज नॉट वेरी स्मार्ट। दलदल के पास सुरंग देखकर ही कुमार को समझ जाना चाहिए था कि जो भी ये किलर है वो इन सुरंग को अच्छे से समझता होगा। सुरंग क्या, पूरे जंगल को अच्छे से समझता होगा। तो अगर मैं कुमार की जगह होता तो मैं 9:30 बजे वाले रेडियो को इग्नोर करता। इट्स बेटर फॉर अस टू लेट हिम गेट डेस्परेट कम टू अस इन आर टेरिटरी इंस्टेड ऑफ द अदर वे अराउंड। एक बार इम्पेशेंट होकर अगर खूनी हमारी हवेली में आता तो हम उसे इजीली ट्रैप कर सकते थे। गोइंग इन हिज टर्फ दैट टू एट नाइट व्हेन आवर विजन इज नॉट दैट क्लियर इज नॉट अ गुड प्लान। गोपीचंद रात को लक्ष्मण का पीछा करता है हवेली में। लक्ष्मण रूफ में जाता है और अपने लैंटर्न से किसी को जंगल की तरफ सिग्नल करता है। जंगल के दूसरी साइड से कोई मशाल लेकर लक्ष्मण के सिग्नल का रिप्लाई करता है। गोपीचंद ये देखकर लक्ष्मण पर शक करता है और भागकर सब बता देता है कुमार को। अगले दिन कुमार नोटिस करता है कि उसका ओवरकोट और सूट गायब हो गया है। तभी वो बाहर से सिग्नल देखता है और उसका पीछा करते हुए जंगल में चला जाता है। जब वो दलदल के पास पहुंचता है, सिग्नल वाला इंसान वहां नहीं दिखता और कोई कुमार को पीछे से धक्का दे देता है। तभी मोहन वहां पहुंच जाता है और पीछे से किसी की लाश देखता है जो कि एक ओवरकोट पहनी होती है। मोहन उस लाश को कुमार समझता है। बाद में पता चलता है कि वो लाश कुमार की नहीं बल्कि उसकी थी जिसने कुमार का ओवरकोट चोरी किया था। लक्ष्मण इज डेफिनेटली एक्टिंग सस्पिशियस हेयर। अगर मैं गोपीचंद की जगह होता तो मैं भी उस पर शक करता, पर तुरंत भागकर कुमार को बताना इज नॉट अ स्मार्ट डिसीजन, समथिंग दैट अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर शुड नॉट डू इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर। अब मैं होता तो लक्ष्मण को स्नीकली ऑफ फॉलो करता, उसका पैटर्न स्टडी करता। विदाउट एनी सॉलिड प्रूफ एक्यूजिंग हिम इज नॉट हेल्पिंग आवर केस एट ऑल। विदाउट अ डाउट सिग्नल वाला आदमी को जंगल में फॉलो करना स्मार्ट आइडिया नहीं था। रात रात थी, अच्छे से कुछ नहीं दिखता है, टेरिटरी किलर की है, वो बात हम पहले भी कर चुके हैं। ये तो कुमार का लक था कि उसका ओवरकोट किसी और ने चोरी किया था और किलर ने कंफ्यूज होकर उसे मार दिया इंस्टेड ऑफ कुमार। कुमार को इस इंसिडेंट के बाद 9:30 बजे वाले रेडियो का पीछा करना बंद कर देना चाहिए और इनफैक्ट लंदन की टिकट करवा लेनी चाहिए थी एसएप। Radha's uncle Ramlal is concerned with her growing closeness with Kumar. He forbids her relationship with him. Radha forcefully agrees. After a few days, Ramlal feels guilty and asks Radha to bring Kumar near the swamp so he can ask him to marry her. Dr. Pandey and Mohan are seen listening to the conversation secretly. महल में लक्ष्मण इन्फॉर्म करता है कुमार को कि जो बंदा उसका कोर्ट में मारा पाया गया था वो उसका ब्रदर इन लॉ था और वो एक फ्यूजिटिव भी था, इसलिए वो लक्ष्मण को सिग्नल करता था कि आसपास की सेफ्टी चेक करने के लिए। यू ऑल्सो लर्न कि लक्ष्मण की बहन वहीं पे रहती थी। हमें ये भी पता चलता है कि मोहन एक्चुअली एक अंडरकवर कॉप है जो कि इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करता है। कुमार डॉक्टर पांडे की पार्टी में होता है कि फिर से उसे गाने की आवाज़ आती है और जब वो पीछा करता है तो पता चलता है कि वो राधा ही थी जो कि गा रही थी। दरगाह के पास आने पर रामलाल गलती से राधा पर अटैक करने वाला होता है कि तभी वो राधा को देख लेता है। राधा को रामलाल बताता है कि रामपुर का मुखिया वही था जिस पर कुमार के ग्रैंडफादर ने अटैक किया था 20 साल पहले। हमें ये भी पता चलता है कि रामलाल हवेली के बेसमेंट से भाग गया था और कुमार के पापा, चाचा और दादा का खूनी वही है। रामलाल सुरंग में वापस जाता है और कुमार पर अटैक करने ही वाला होता है कि मोहन वहां आ जाता है और पुलिस के साथ उसके पीछा करता है। एक लंबे चेस सीक्वेंस के बाद मोहन शूट्स रामलाल हु फॉल्स डाउन। रामलाल apologizes to Radha before he dies. As I said multiple times before in this video, don't follow the creepy songs in the jungle. Mohan also did a terrible job as an undercover cop here. अगर उसे शुरू से ही किलर को पकड़ना होता तो एक बहुत सिंपल प्लान बना सकता था। पहले तो कुमार से बोलता कि गांव में ये बात फैला दे कि वो अगले दिन जा रहा है लंदन वापस। सेकेंडली कुमार से बोलता कि कितना भी तेज म्यूजिक बजे जंगल में ना जाए और हवेली में ही रहे, जहां वो बाकी पुलिस वालों को हर जगह निगरानी पर खड़ा कर सकता था। जैसे ही रामलाल डेस्परेटली हवेली में आता कुमार को मारने के लिए,
वो पकड़ा जाता और इसमें रिस्क भी नहीं होता इतना. Kumar would have been perfectly safe and they would have caught Ramlal alive too. We also learned that Dr. Pandey was also trying to solve this mystery, that's why he was roaming around the jungle at nights. The film ends with Kumar consoling a crying Radha while they walk away from the terrifying jungle. Thank you for watching and do consider liking the video and subscribing to the channel if you like these type of content. And remember, planning ahead is always better than being dead. This is the film Survivor and see you in Kuch To Hai.